ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں تلنگانہ میں 7,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز۔ پروجیکٹوں میں سڑک، ریل، پیٹرولیم، شہری ہوابازی اور قدرتی گیس جیسے کلیدی شعبے شامل۔ وزیر اعظم کے 7 مارچ کے دورہ سری نگر سے پہلے کشمیر وادی میں سیکیورٹی چوکس۔ میرا پہلا ووٹ دیش کے لیے مہم کے تحت کئی تعلیمی اداروں میں تقاریب کا اہتمام۔ تقاریب کا مقصد ووٹ دینے کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور طلباء اور عملے کو چناؤ عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی۔ اور سری نگر جموں قومی شاہراہ پر رامبن سیکٹر میں دوران شب سڑک ایک حادثے میں 2 افراد جاں بحق۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ میں سانگا ریڈی کے مقام پر 7,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ ان پروجیکٹوں میں سڑک، ریل، پیٹرولیم، شہری ہوابازی اور قدرتی گیس جیسے کلیدی شعبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ریاستوں کے وکاس کے ذریعے راشٹر کے وکاس کے منتر میں یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے انڈین آئل پیرادیپ حیدرآباد پروڈکٹ پائپ لائن کا بھی افتتاح کیا، جس پیٹرولیم مصنوعات کو نسبتاً کفایتی اور ماحولیاتی کے لیے سازگار طریقے سے لے جایا جا سکے گا۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے 7 ریاستوں میں کئی جگہوں پر آج چھاپے اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ یہ چھاپے کرناٹک میں لشکر طیبہ کے ایک دہشت گرد کی طرف سے قیدیوں کو شدت پسند بنانے کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں۔ بنگلورو جیل میں قیدیوں کو شدت پسند بنانے کے معاملے میں 7 ریاستوں میں 17 جگہوں پر چھاپے کی یہ کارروائی چل رہی ہے۔ NIA نے اس سال جنوری میں اس معاملے میں 8 افراد کے خلاف فرد جرم دائر کی تھی۔ اس فرد جرم میں کیرالہ کے کنور ضلع میں T نصیر کو بھی ملزم بنایا گیا ہے، جو 2013 سے بنگلورو کی مرکزی جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ دوسرے ملزمان میں جنید احمد عرف JD اور سلمان خان شامل ہیں، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 7 مارچ کے دورے سری نگر سے پہلے کشمیر وادی میں سیکیورٹی کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور حفاظتی دستے سری نگر شہر اور دیگر مقامات پر گاڑیوں اور راہگیروں کی باریک بینی سے تلاشی لے رہے ہیں۔ سری نگر کے مختلف مقامات پر خصوصی چیکنگ پوائنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ انکم ٹیکس کے محکمے نے متعلق ٹیکس دہندگان کو تشخیصی سال 2021-22 کے دوران ان کی انکم ٹیکس ریٹرن ITR میں خامیوں کے لیے مراسلے ارسال کیے ہیں۔ محکمے نے بتایا کہ بعض معاملوں میں اس مدت کے دوران اعلان کردہ مالی لین دین کی اطلاع کے تعلق سے ITR میں دی گئی اطلاع کے درمیان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ محکمے نے مزید کہا کہ بعض معاملوں میں ITR ہی جمع نہیں کرائے گئے ہیں۔ انکم ٹیکس کے محکمے نے کہا کہ وہ ویریفیکیشن اسکیم 2021 کے حصے کے تحت متعلقہ ٹیکس دہندگان کو اطلاع میں خامی کے لیے مراسلے ارسال کر رہا ہے۔ یہ اطلاع ٹیکس دہندگان کو محکمے میں درج ان کے ای میل اکاؤنٹس کے ذریعے ارسال کی جا رہی ہے۔ محکمے نے ٹیکس دہندگان پر زور دیا ہے کہ وہ اطلاع سے متعلق اپنے سالانہ سٹیٹمنٹ کا فائلنگ پورٹل کے ذریعے جائزہ لیں اور تازہ ترین ITRs داخل کریں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر رامبن سیکٹر میں بیٹری چشمہ علاقے میں دوران شب سڑک ایک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک سومو گاڑی جو رامبن سے بانہال کی جانب جا رہی تھی بیٹری چشمے کے مقام پر سڑک سے لڑھک گئی۔ بچاؤ کارروائی کے دوران جائے حادثے سے 2 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، جن کی شناخت گاڑی کے ڈرائیور طارق احمد اور حکیم الدین کے طور پر کی گئی ہے، جو گول بانہال کے رہنے والے تھے۔ کپواڑہ ضلع کے باترگام علاقے میں دوران شب آگ کی ایک واردات میں ایک 3 منزلہ شاپنگ کمپلیکس خاکستر ہو گیا۔ اس شاپنگ کمپلیکس میں ایک ہوٹل سمیت نصف درجن دکانیں بھی آگ کی نظر ہو گئیں۔ اس 3 منزلہ عمارت میں رہائش پذیر غیر ریاستی مزدور آگ میں جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور مقامی لوگوں نے آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے کافی مشقت کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے آگ کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ نیشنل سروس اسکیم ونگ نے گورنمنٹ کالج فار ویمن MA روڈ سری نگر کے الیکٹورل لٹریسی کلب کے اشتراک سے آج کالج کے کانفرنس ہال میں ووٹ کے حق سے متعلق ایک خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا، جس کا مقصد پہلی بار ووٹ دینے والوں میں ووٹ کے حق کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر ووٹ کے حق کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور اہل ووٹروں کو چناو فہرست میں اپنے نام درج کرانے کے لیے راغب کیا گیا۔ تقریب میں NSS رضاکاروں، PLC ممبروں، طلباء اور فیکلٹی ممبروں نے شرکت کی۔ خصوصی لیکچر کے بعد سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد کیا گیا۔
गांधी मेमोरियल कॉलेज सिंगर की एनएसएस विंग ने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री डिपार्टमेंटों के इश्तराक से मेरा पहला वोट देश के लिए एक हिस्से के तौर पर इंतखाबात और वोटिंग से मुतालिक आज एक सवाल और जवाब सेशन का एहतमाम किया। तकरीब का आगाज प्रोग्राम के मकसद को मुतारिफ करने और भारत में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की अहमियत को उजागर करने से हुआ। उधर मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज काजीगुंड में भी आज एक हलफ बर्दारी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद वोट देने की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और तलबा और अमले को चुनाव अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई करना था। गवर्नमेंट विमेंस डिग्री कॉलेज बारामूला में भी मेरा पहला वोट देश के लिए के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम कॉलेज के एनएसएस इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब और डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक के तलबा ने इस तकरीब में बड़े जोश के साथ कौमी तराना गाया और इसके अलावा स्किट और मौजुआती रक्स पेश किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा के एहतमाम से भी पार्लिमानी मुहिम के उन्वान से आज एक आर्ट इवेंट का एहतमाम किया गया। तकरीब में पहली बार बोर्ड के अहल तकरीबन 30 तलबा ने ड्राइंग और मुसव्वरी के मुकाबले में शिरकत की। कॉलेज की प्रिंसिपल इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। इसी दौरान आर प्रोडक्शन गांदरबल ने आइंदा इंतखाबात में हक रायदही का इस्तेमाल करने की अहमियत पर एक लोकगीत भी पेश किया। इधर नौजवानों में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर काफी जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। हमारे नुमाइंदे ने आज भी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कई नौजवानों से बात की, जिन्होंने अपने ख्यालात और एहसासात का कुछ इस तरह से इजहार किया। इस साल मैं वोट के लिए एलिजिबल हुई हूँ, क्योंकि मैं 18 साल से ऊपर हो गई हूँ, तो मैं वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गई हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि इस साल कश्मीर में वोट्स होने वाले हैं, तो हमें अपने वोट की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे इलेक्शंस के बाद हम अपने लीडर्स चूज़ करते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी का फ्यूचर कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं। एक अच्छा लीडर ही ये सोसाइटी को आगे भी ले जा सकता है, और एक बुरे लीडर की वजह से हमारी सोसाइटी पीछे भी जा सकती है। इसलिए हमें अपने वोट की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और हमें वोट अपना कास्ट करना चाहिए। तो इस बार हमारा पहला वोट है और इस बार हम काफ़ी एक्साइटेड है कि हम इस बार वोट डाल रहे हैं। और मेरी बाकियों से भी गुजारिश है कि जिनका भी पहला वोट है वो बढ़ चढ़ कर इलेक्शंस में हिस्सा ले और अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट भेजे। जमहूरियत का यही मकसद है कि हम अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट भेजें ताकि वो वहाँ पर हमारे मसले मसाइल उठाए। इसलिए मेरी हर एक से गुजारिश है कि वो आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। प्रदेश बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने आज अनंतनाग जिले के ब्रा शांगस में मुनाकिदा एक रोजा कन्वेंशन में पार्टी वर्करों से खिताब किया, जिसका एहतमाम पहाड़ी तबके ने किया था। कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके के लीडरों और बीजेपी के लीडरों ने शिरकत की। मकामी पहाड़ी लोगों ने बीजेपी सदर रविंद्र रैना का खैर मकदम किया और पहाड़ी तबके को कबायली दर्जा देने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। पार्टी वर्कर्स और पहाड़ी तबके के मेंबरों से खिताब करते हुए पार्टी सदर ने कहा कि बीजेपी हर सतह पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हर फिरके के बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश की है और हर फर्द को सरकारी स्कीमों के फवायद हासिल करने को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो 7 मार्च को श्रीनगर में वज़ीर-ए-आज़म की रैली में बड़ी तादाद में शिरकत करके इसको कामयाब बनाएं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से आज काजीगुंड अनंतनाग में पार्टी वर्करों का एक कन्वेंशन मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने की। कन्वेंशन में मुख्तलिफ इलाकों के वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर वर्करों से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के बाद लोगों को असेंबली और पंचायती इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए आगे आना चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लिमानी बोर्ड का एक खुसूसी इजलास पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनाकिद हुआ। इजलास में पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के मुमकिन उम्मीदवारों पर तबादले ख्याल के अलावा मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल भी जेर बहस आए। इस मौके पर पार्टी सदर ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अवामी राबता मुहिम में तेजी लाने और हर सूरत में अवाम के साथ जुड़े रहने की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और कई दीगर सीनियर पार्टी लीडरों ने शिरकत की।
मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से मुतल्लिक एक सेमिनार कम जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर ने की। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर MSME देवेंद्र कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर यूटी में योजना के तहत लगभग 3 लाख दस्तकारों को रजिस्टर किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अत्थर आमिर खान और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर शालीमार में आज ज़राई मेले के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ बीजों की नुमाइश की गई। वाज़ेह है कि इस मेले का इफ्तिताह कल फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हमरा किया था। इस दौरान आज भी बड़ी तादाद में लोगों ने मेले में शिरकत की। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने ज़राई कॉम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में डायरेक्टरों, सूबाई सरबराहों, स्कीम सरबराहों, चीफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर अफसरों और दीगर मुतल्लिक अफसरों की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में CSS, कैपेक्स और HADP जैसी मुख्तलिफ मरकजी वसातत वाली स्कीमों के तहत तब्बाई और माली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत रकूमात की मुनसिफाना इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 56 RCC ने गुरेज बांडीपोरा में LOC के मुत्तसिल एक दूर उफ्तादा गांव में हंगामी बुनियादों पर 6 किलोमीटर सड़क पर जमा बर्फ को स्नो कटर मशीनों के जरिए साफ करके परेशानी में मुब्तला 2 अलील खवातीन मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। मकामी बाशिंदों ने कीमती जानों को बचाने के लिए BRO की इस बरवक्त कार्रवाई की सराहना की। केयर फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और गयूर फाउंडेशन के इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में आज मारूफ ताजिर और समाजी कारकुन गुलानबी आली कदली की 5वीं बरसी के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एक महफिल मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। तकरीब के आखिर में सहाफत से वाबस्ता शख्सियात और दीगर अहम शख्सियात को एजाजों से नवाजा गया। तकरीब में मुख्तलिफ तबके हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की, जबकि ऐवानी सदारत में शौकत गयूर और महजबी नबी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। सदर आरिफ अलवी ने उन्हें इस्लामाबाद में ओहदे का हलफ दिलाया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।